أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Now, I was previously discussing the rationality of the antibiotics, part 2, where to use it, what and how to use it, and what is the proper classification of the antimicrobial agents. And for the previous days, I have been discussing this topic, and I classified accordingly according to the pharmacological protocol. So one should understand that only the pressing indication or justifiable indications will need the antibiotics. Otherwise, antibiotics should not be used. Number 2, if you are justifying that this is the infection, which type of infection? It is a bacterial infection, it is rickettsial, or it is fungal, or it is viral. So antimicrobes are actually needed accordingly, according to the type of the microorganism which is involved. In certain infections, there is hardly any antimicrobial agent which is effective. Secondly, there is no need of the antimicrobial agent to use. And another way, I will say that justify the infection and then treat the infection. And the antibiotics should be used accordingly. If there are bacteria, there will be a gram-positive bacteria or gram-negative bacteria. Secondly, whether they are cocci or they are bacilli. If they are gram-positive cocci or gram-negative cocci or gram-positive bacilli or gram-negative bacilli. Bacteria are the major part of the infection. And I classified them accordingly so that the students and the others will be actually, they should understand this problem. So there are certain antibiotics which are used for this purpose, which are effective for the gram-positive organisms only, but not for the gram-negative organisms. Second type of antibiotics are those, or antimicrobial agents are those, where they are effective in the gram-positive bacilli, but not gram-negative bacilli. Another type of the antibiotics are used only for the gram-negative bacilli or gram-negative cocci. So there are 4 types of classifications accordingly, and the gram-positivity is concerned. And these antibiotics are classified accordingly, like bacterial-active antibiotics, like sulfonamides, like macrolides, like lincomycins, like fusidic acid derivatives, like aminoglycosides. Now these are actually the classes of the drugs. And not lastly but not the least is that the antibiotics, they are resistant because resistance is produced by the misuse and underdosage. That is why the resistance occurs usually. Very complicated mechanism of resistance is there. So you should be very, very careful in prescribing it. So if you are using these antimicrobial agents, then one should remember that the duration and the dosage should be clearly mentioned. Whether the person should be asked actually
for the allergic reaction of any type of allergic reaction previously with any drug allergy that is called. Now in the second part, I am discussing the specific problems where you are using these antimicrobial agents, and this is the rationality actually of the usage of the antibiotics. This is part 2. I am speaking on behalf of Dr. Javed Sami. I am actually the supervisor of Dr. Javed Sami. I want to clarify this portion, and because because of my vast experience which I have gained, this lecture is built upon. Now, therapy of the common illnesses caused by the microbes. When to use them? When? Now, this is a very common problem. It is called the common cold. If there is history of allergy previously or vasomotor rhinitis, it is allergic rhinitis. Okay. The second type of the problem is this type of the season you are facing. खास मौसमों में ये डिजीज़ आएगी और इसका जो ग्रुप है वो पिक्रोना ग्रुप ऑफ वायरस है, और पिक्रोना ग्रुप ऑफ वायरस में भी राइनो ग्रुप ऑफ वायरस से ज़्यादा कॉमन है। एक्को वायरसेस भी हैं, लेकिन दूसरे वायरसेस भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस फॉर एग्जाम्पल। Now, common cold, there are stages actually, 4 or 5 stages. The first stage is the dryness, and the second stage is irritation you produce in the nose, and there the third stage is there will be sneezing starts, and there will be watery discharges from the nose, and then dripping on the backside, etc., with slightly malaise, and the fourth stage where the secretions become infected by the secondary invasion of the bacteria like streptococci or Haemophilus influenzae or Moraxella catarrhalis, etc. And then this is the infective stage, second infection. Another stage comes when there is a resolution. Either it will lead to complete recovery or it will lead to complications like the sinusitis or eustachitis, that is the inflammation of the eustachian tube, etc., or it may lead to the acute separative otitis media, etc. अब मसला ये है कि the thing is this, the organism are very critical, they are viral, so antiviral drug should not be used. In that stage only the supportive therapy is effective. मिसाल के तौर पे जो है वो भाप लेना, गरारे करना, माउथ वॉश करना, डिस्प्रिन के जो गरारे आप करवाते क्यों करवाते हैं? Acetylsalicylic acid is very powerful anti-inflammatory agent. तो वो क्या करता है कि वो जो स्वेलिंग है थ्रोट की उसको क्लियर कर देता है, कम कर देता है। इसलिए आप कहते हैं ना डिस्प्रिन के गरारे कर लो, इसलिए कहते हैं, दैट इज द रीज़न। इसमें बेटनेसॉल के लोग करते हैं, उससे भी गरारे कर सकते हैं, गॉगल्स कर सकते हैं, और कॉफ़ी पिएँ और टी पिएँ, और इस किस्म की अशिया जो होती हैं वो सपोर्टिव कहलाती हैं, वो इस्तेमाल करें। ग्रीन टी बहुत अच्छी है इसमें। लेकिन अगर जो है ना वो सिक्रीशन जो है वो कलर्ड हो जाए, नाक से बहाव हो या बुखार आ जाए मरीज को साथ में ज़्यादा, तो फिर एंटीबायोटिक इस्तेमाल होंगी, और ग्राम ज़्यादा पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं ज़्यादातर इसमें, कुछ ग्राम नेगेटिव भी हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक का शॉर्ट कोर्स उसको दे दें, ख़ास तौर पे जो है वो उन लोगों के लिए जिनका जो इम्यूनिटी सप्रेशन में है, जैसे छोटा बच्चा है बिल्कुल ही, या एंड ऑफ द एज है, यानी 60 साल से ज़्यादा जीनेटिक एज ग्रुप है, उसमें जो है कवरेज करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इट विल डिप डाउन एंड इट विल कॉज द लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, प्रोबेबली निमोनिया। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं कि फिर हम एंटीबायोटिक दे देते हैं। अदरवाइज सिम्टोमेटिक थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी इज नीडेड। एंड दिस इज अ वेरी सीवियर sore throat. Look what is here. All follicles of the tonsils, they are visible and oozing pus. It is a separative type of tonsillitis, or it is known as the follicular tonsillitis. Whatever tonsillitis it is, follicular or non-follicular, or it is inflamed, and whatever it is,
Look the uvula, because of pain here, the uvula is moved to the other side. It is caused by the the gram-positive organism, Streptococcus. That is the main organism. Streptococcus or Moraxella catarrhalis or Klebsiella pneumoniae. The first drug of choice, therefore, the amoxicillin plus clavulanic acid, that is augmentin. It should be given 625 mg 3 times a day, or 1 gram BD with severe infection, or parental root if very, very severe. It is a drug of choice. If he is allergic to it, then you go for the other drugs. In my opinion, augmentin is the drug of the choice, or penicillin group is the drug of choice. Second drug of choice is the second generation cephalosporins, not first generation, because it will not cover the gram-negative organism. For example, the cephalosporin, etc. Or third generation can be used also, ciprofloxacin, ciprofloxacin. Third drug of choice will be lincomycin. It is a very powerful agent against the staphylococcal or streptococcus, gram-positive. In most of the cases, a gram-positive organism. That is why I am using lincomycin. It is easy to inject. Injectable forms are more effective. You are giving orally lincomycin or clindamycin. Be aware that it may cause the antibiotic-associated diarrhea. If very severe, it will cause the pseudomembranous colitis. To avoid it, you give the metronidazole as a preventive measure. Now, this is a severe type of the redness here. Here it is. This is a membrane, and there are granules. Very severe acute pharyngitis. Commonly, it's caused by the streptococci. Again, the same one. It should be treated. And ASO titer will be checked out, and the short throat should be done if it is possible. Because if it will be there, you can able to suppress it. You can avoid the rheumatic fever. Rheumatic fever is the crippling disease at the end of the life. Actually, it is very, very problematical disease. So, first drug of choice to kill streptococci, give amoxicillin plus clavulanic acid. Augmentin, that is, it should be given as the 625 mg 3 times a day or 1 gram twice a day. The second drug of choice they are using the macrolides, the third group, that is the clarithromycin or the azithromycin. One can choose it, yes. The first drug of choice is, again, I will say, the augmentin. Now, this is the paranasal sinus X-ray. It is fluid levels are seen in the maxillary sinus. Some of the part of the frontal sinus is gone, and it is the acute maxillary sinusitis. And there is inferior tabinated hypertrophy, and probably the post-nasal tipping, etc. will be present. It is mostly the complication after common cold, but it may be without common cold. The causative organism are streptococci and Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, same organisms. The first drug of choice, again, this is the problematical, that is streptococci, streptococcus, etc. These are the problems, mostly they are involved. Therefore, you are using the broad spectrum penicillins. It has got a very powerful effect on the gram-positive organisms. So, you can give amoxicillin, you can give the ampicillin, and you can give the clavulanic acid with amoxicillin, that is augmentin. The second of choice are macrolides. Either you using the erythromycins, or you use the clarithromycins, or you use the latest azithromycins. They are effective drugs, but should be used for a 7 to 10 days therapy. With all other measures, supportive measures should be done. The third drug of choice is quinolones. If the patient has got the problem with these drugs, adverse effects, then quinolones should be given. In the quinolone group, the moxifloxacin is the drug of choice because it will cover all organisms, all bacteria are sensitive to the moxifloxacin. All bacteria are sensitive to azithromycin.
Not a single bacteria is left. Although the people are misusing it, because of the misuse, there is a resistance developed actually. The problem is with the resistance of the misuse of the drugs. Now here you see, this is the what audiometry has been done, that is the otoscopy, indirect, and you see there is inflammation, redness of the eardrum, and here you see there is paleness here, very clear one at the edematous, and it is acute suppurative otitis media. Again, it is a complication either the maxillary sinusitis or from the rhinitis, infective rhinitis, or maybe complication of acute pharyngitis. So the cortical organism will be the gram-positive organism mostly, but gram-negative organism like Catarrhella, Moraxella, or Schindleria group are also Schindleria pneumoniae, for example. Even mycoplasma pneumoniae can also cause the acute suppurative otitis media. The first drug of choice in this case, again because of the gram-positive organism, the amoxicillin is the with carbonic acid augmentin, that is the drug of choice for a period of 7 to 10 days. Second drug of choice are the macrolides. You give clarithromycin or azithromycin. The third drug of choice is quinolones. Again, I will say, either you're using the prodrug of ciprofloxacin, that is levofloxacin, or you can use another one, which is the new one, and that is the moxifloxacin. That is the effective drugs. The fourth drug of choice is cotrimoxazole, very useful in children. I will say it is should be the first drug of choice, according to the professor of father of pediatrics in Pakistan, the Professor Ghaffar Billu. He said that it is effective drug, very effective drug. Even in enteric fever, it is very effective in children, according to him, because it was vast experience. Coming to the acute bronchitis, where this is the complication of the common cold, it will be the complication of acute pharyngitis, the postnasal drip via maxillary sinusitis, and the secretion pulled down inside, and it will cause the acute bronchitis. It is reactive actually, bronchitis in most of the viral infections. जब ख़त्म हो रहा था इन्फेक्शन, याद रखिएगा, उस वक्त जो है ना ये अपर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व होता है, ये वाला एंड में आ रहा होता है, और वो सीलिया को तोड़ देता है. अब सीलिया जो होते हैं वो ब्रोंका या ब्रोंक्यूल तक होते हैं, जहाँ पे कार्टिलेज जहाँ ख़त्म होती है वहाँ जाके ये सीलिया ख़त्म हो जाता है. सीलिया के एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने उसको ब्रेक डाउन कर दिए हैं, उसका ऊपर का हिस्सा टूट गया है, उसका रिजेनरेशन टाइम जो है 2 to 3 weeks होता है. और वो ये कहें कि आप फौरी खांसी बंद कर दें तो वो तो बिल्कुल ही फजूल बात है. तो टेपरिंग होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके सीलिया रिजेनरेट करते हैं और खांसी कम हो जाती है. अब वो जो पेशेंट गया है पहले फिजिशियन के पास, उसने दवाई दी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ. सेकेंड वाले फिजिशियन के पास गया, 1 हफ्ते बाद उसने कुछ दवा दी थी तो कुछ बेहतर है लेकिन ठीक नहीं हुआ. थर्ड वाले फिजिशियन के पास गया, जब उसने दवा दे दी और दवा देने के बाद वो ठीक हो गया. तो फ़ायदे में कौन रहा? थर्ड फिजिशियन, क्योंकि वो एंड स्टेज आ रही थी या सीलिया रीजनरेट हो रहे थे. आपका कोई कमाल नहीं है इसमें. तो थर्ड वाला तो मकबूल हो गया, जो फर्स्ट वाला है वो फिर बदनाम हो गया एक तरह से कि भाई उसको कुछ नहीं आता. अगर किसी को समझाएं भी ये बातें तो किसी की समझ में नहीं आती कि खांसी जो है ना एकदम बंद कर दो. भाई यू कैन हेल्प लाइक दिस, दे आर कॉज्ड बाय द वायरस. So antibiotics are not indicated when there are evidence of secondary bacterial infection. You can use it. अब वही अगेन है कि फीवर होगा, प्रूलेंट एक्सपेक्टेशन है, क्रैप्स और ऑस्कल्टेशन है, एजिस का मतलब बच्चा छोटा है या बहुत बूढ़ा आदमी है, उसमें तो एविडेंस है ठीक है कि आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंटिव थेरेपी दे दें, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है. इसके अंदर जनरल मेजर्स काफ़ी होते हैं, अपने टाइम दे के ख़त्म हो जाएगा. फर्स्ट डे ऑफ चॉइस जो है मैक्रोलाइसिस में which cover most of the organisms, clarithromycin और azithromycin. सेकेंड डे ऑफ चॉइस जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन है या लीवोफ्लॉक्सासिन है, या पे जो है वो आजकल इस्तेमाल होती है दवा, वो मोक्सिफ्लॉक्सासिन है. आसानी के साथ जो है ना लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है. थर्ड ऑफ चॉइस जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑगमेंटिन वगैरह, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन ये मैक्रोलाइड्स आजकल टॉप मोस्ट हैं
वर्ल्ड में ब्रोंकाइटिस के लिए। फूड ड्रग ऑफ चॉइस जो कोट्रामेक्सोजोल, तो चिल्ड्रन में ख़ास तौर पे सब्ट्रॉन जो है बहुत इफेक्टिव ड्रग है। और फिफ्थ ड्रग ऑफ चॉइस भी है इसके अंदर, बिकॉज आपको इन्फेक्शन का नहीं पता, आपने कल्चर नहीं किया, आपने स्पूटम के अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं पता, तो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप्स आर वेरी गुड। Rhabdomycin can be used. Now this is on the skin infection, this is folliculitis or boil. अब किसी को हो गया है ये और फिर ये कन्वर्ट हो गया एब्सेस में, स्टार्ट हुआ बॉयल और एब्सेस में कन्वर्ट हो गया। अब एक जगह जब जमा हो गया ये पस, तो इसका असल तरीका ये कि इसको निकाल के बाहर करो। इंसिजन एंड ड्रेनेज देना कौन सा मुश्किल काम है। उस पार्ट को जो है ना सेंसिटाइज कर दें थोड़ा सा इथिलीन से या किसी चीज़ से, और उसको ज़रा सा जो है ना अपनी यानी जो स्टेराइल नीडल उससे कट दे दें, उसको ड्रेनेज दे दें, दबा के निकाल दीजिए। लोग तो खुद ही जो है ना सुई मार के निकाल लेते हैं, लेकिन वो गलत है, बिकॉज सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा फिर सेलुलाइटिस हो जाएगा। यदि फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इसको जब ड्रेनेज कर देते हैं तो फिर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन दे दें। सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस में आप चाहें तो इंजेक्टेबल लिंकोमाइसिन दे दें, 600 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर दे दें, कवरेज इसका मिल जाएगा, दर्द भी नहीं होता इसमें, कोई प्रॉब्लमेटिकल नहीं होता, कोलाइटिस भी नहीं होता इसमें, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस नहीं होता, इंजेक्टेबल में नहीं होता, ओरल में होता है। तो थर्ड वो चॉइस जो है मैक्रोलाइट्स हैं, जो एज़ोथ्रोमाइसिन है, क्लेरोथ्रोमाइसिन है, वो भी दे सकते हैं। फ्यूसुरिक एसिड है, वो बहुत स्टेफिलोकोकस के लिए बहुत और स्टेफिलोकोकस के लिए बहुत पावरफुल एजेंट है, जो कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। पॉलीमिक्सिन वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं, लोकली इसमें मिलते हैं, पॉलीफैक्स पॉलीमिक्सिन है इसमें, वो भी लोकल इस्तेमाल करते हैं हम। असल में इसको जो पैरेंटल रूट है या ओरल रूट है इतना यानी उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से इसको अवॉइड करते हैं। हम करते हैं आईसीयू में इस्तेमाल पॉलीमिक्सिन को। उसके बाद ये चीज़ जो फैल गई चारों तरफ, अब ये जो है ना सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन हो गया, डर्मस एपिडर्मिस के दरमियान ये ट्रेवल कर रहा है, ये इसको कहते हैं सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस हो गया तो सेलुलाइटिस का ट्रीटमेंट एब्सेस की तरह है। अब इसने ये बढ़ने के बाद क्या किया कि यही सेलुलाइटिस ने चारों तरफ से जो फेशियल पाथ है उसकी तरफ चला गया, डिसेप्टेशन है, कंपार्टमेंटल हो गया ये। और वहाँ पे उसने क्या किया कि जगह जगह जो है ना बाहर निकलने के लिए जोर लगाया, तो साइनसेस बन गए बहुत सारे। इसको कहते हैं कार्बंकल। खासतौर डायबिटिक्स के लिए प्रॉब्लमेटिकल है, ज़्यादातर डायबिटीज़ में मैंने देखा है। स्टेप वन ये है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है, लिंकोमाइसिन है, फोक्सोमाइसिन और मॉक्सिफ्लॉक्सासिन पैरेंटली दे दें। अगर इससे नहीं हील होता 7 डेज में तो सर्जिकल डिसीजन के लिए भेज दें। अब वो इंसाइज करेगा, एक इंसिजन देगा, दूसरा इधर का देगा, चौथा इधर का देगा, उसको पूरा क्लियर करेगा, प्रेशराइज करके ना साइनसेस को क्लियर करेगा। लेकिन अमूमन जो होता है कि आप ये ड्रग देते हैं फॉर 7 डेज तो ये कार्बंकल हील हो जाता है, क्योंकि बाहर निकल रहा है ना, कि जो ड्रेनेज है वो तो हो रही है, उसको रोकने की कोशिश मत करें, वो अपना टाइम लेके निकल आएगी बाहर। आपका काम ये है कि ये सेप्टिसीमिया में ना चला जाए पेशेंट, इसलिए आप ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं। अब ये देखिए आप ये सेलुलाइटिस उसी की सेम कैटेगरी है, इसे स्टेज वाइज है, सेकेंड स्टेज थी। फॉलिकुलाइटिस देन सेलुलाइटिस देन एब्सेस, तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस एंड देन कार्बंकल। तो सेलुलाइटिस जो है फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस बीटा लैक्टम होगी, सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस लिंकोमाइसिन है, थर्ड ड्रग ऑफ चॉइस मैक्रोलाइटिस है। सीधी सीधी बात है। ये पेशेंट इज डायबिटिक लेकिन है और फुट में है खास तौर पर सेलुलाइटिस इन द फीट। नाउ डेज ये चूजिंग लिंजोलेट। Now linzolid जो दवा है that is 600 milligram twice a day should be used in the first 5 days, and another 5 days you will use 600 milligram OD. इसमें लोकल ड्रेसिंग वगैरह जो करते हैं डायबिटिक फूड वाले वो अपना काम करें। आपका काम सजेशन देना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। अदरवाइज ये कि ये डायबिटिक फूड कन्वर्ट ना हो जाए कहीं खुदा न खास्ता गैंग्रीन के अंदर, उसको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वरना एम्पुटेशन करना पड़ जाएगा। उसके बाद ये जो है आप ये देखेंगे थ्रोट है, उसके अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जगह 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 जगह। आप ये देखिए ये वाइट मार्क्स नज़र आ रहे हैं, इसमें से बाहर चीज़ ऊजिंग नज़र आ रही है।
और यहाँ पे एक अल्सर पड़ा हुआ है, उसका रेड बॉर्डर है, उसके चारों तरफ एडिमा है। इसी तरह से एक जगह नहीं है, 2-3 जगह और भी है। तो इन्फेक्टेड जो है ना माउथ अल्सर्स कहते हैं, बहुत पेनफुल अल्सर्स होते हैं, बुखार और ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं। दे बिकम इन्फेक्टेड। अगर माउथ अल्सर इन्फेक्शन डेवलप कर ले या माउथ इन्फेक्शन अल्सर कर दे, जो रीजन करीब पड़ा हुआ है, जैसे टूथ के माउथ के ऑर्गेनिज्म है, टूथ है, पेरियोडोंटल डिजीज़ वगैरह, वहाँ से इन्फेक्शन ट्रेवल कर गया और उसने बकल मिकोजा को इन्वॉल्व कर दिया। तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस बीटा-लैक्टम्स है, सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सीसाइक्लिन है, और थर्ड ड्रग ऑफ चॉइस फ्लुरोक्विनोलोन्स है। इसमें जो है गॉगलिंग कराएं पेशेंट को, उससे बीटामेथासोन की, बेटिसोल की या डिस्प्रिन की अच्छी तरीके से, और फिर इसके अंदर लोकल जो है ना एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, जेल लगा सकते हैं, लोकल जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस विल टेक टाइम। इसके साथ ऐड करते हैं, अगर आप प्रेडनिसोलोन को, डेल्टाकॉर्टिल को फॉर 3 to 5 डेज, तो ये बहुत जल्दी हील हो जाएगा। इसके साथ और इसको अच्छा करना चाहते हैं तो इसके साथ आप लंदन GS वगैरह को डाल दीजिए, फॉलिक एसिड को और डाल दीजिए, कि फॉलिक एसिड रीजनरेशन प्रोसेस में विद विटामिन C अगर दें तो बहुत जल्दी हीलिंग हो जाएगी। अब ये देखिएगा, ये केस है जिसने फीवर विद रैकेट्स था, उसको कॉफ थी और पेन था चेस्ट। इसका नॉन होमोजेनिटी ओबेसिटी नज़र आ रही है, फिर कट लोअर राइट लोअर लोब और रीजन इज इन्वॉल्व। नमूनिया का मैनेजमेंट जो है ना, मुझे आपने डायग्नोज कर दिया, ये बड़े काम का जो है ना स्लाइड है। आप समझ लें कि मैंने 40 साल का निचोड़ है ये मेरा। फर्स्ट स्टेप में ये करते हैं कि बीटा-लैक्टम्स देते हैं या मैक्रोलाइड दें या फ्लोरोक्विनोलोन्स दें। इसका स्कोर निकाल लें, नमूनिया का पोर्ट स्कोर है या कर्व स्कोर है, जो आपको निकाल लें और देख लें कितना टॉक्सिक है। अगर पेशेंट टॉक्सिक है तो आप पैरेंटल एजेंट दें, पेशेंट नॉन टॉक्सिक है तो ओरल थेरेपी कैन बी यूज्ड। सेकेंड स्टेप, द पेशेंट इज रिस्पॉन्डेड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, consider the atypical pneumonia, for example Legionnaires disease. Start with the azithromycin parenterally and rifamycin orally. इनको मिला दें आप, parenteral दें azithromycin और orally दें rifamycin for 7 days, तो ये हील हो जाएगा। Legionnaires disease जो है ना वो अपनी डिजीज जो है ना वो कट डाउन हो जाएगी, क्योंकि पूरा सिंड्रोम है। थर्ड स्टेप ये, इसका मतलब एटिपिकल बैक्टीरिया है, इसमें आपने दिया फ़ायदा नहीं हुआ, 7 दिन और गुजर गए। थर्ड स्टेप, द पेशेंट इज नॉट इम्प्रूव, गिव 3 weeks थेरेप्यूटिक ट्रायल ऑफ एंटीट्यूबरकुलर थेरेपी, क्योंकि ऐसे लीजन भी होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के जो पकड़ने नहीं जाते, इतने माइक्रो होते हैं, वो एक्सरे में भी नहीं आते, HRCT में भी नहीं आते, इवन स्पुटम के नहीं में बड़ा मुश्किल होता है डिटेक्ट करना। उस सूरत में कि आप जब नहीं पकड़ पा रहे हैं तो थर्ड स्टेप ये कि आप थेरेप्यूटिक ट्रायल दें एंटीट्यूबरकुलर थेरेपी की। कितने दिन के लिए? 15 डेज के लिए दें। अगर इम्प्रूव हो गया पेशेंट तो 2 month + 4 month पूरा कर लीजिए, वरना विड्रॉ करते हैं। फोर्थ स्टेप ये कि इससे फ़ायदा ना हुआ, देन कंसीडर सम ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसने निमोनिया किया, तो ट्रायल दें स्टेरॉइड्स का 2 weeks विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अगर आप देते हैं और ये पेशेंट का निमोनिया रिजॉल्व हो जाता है, इसका मतलब अंडरलाइंग ऑटोइम्यून डिजीज़ है कोई, उसको वर्कअप करें। अगर फर्ज करें आप ऑटोइम्यून डिजीज़ सस्पेक्ट कर रहे थे और मैनेज भी कर दिया आपने, फिर भी मैनेजमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब 5th स्टेप पे जाएं, देन ब्रोंकोस्कोपी करें या नीडल बायोप्सी करें, जो सस्पेक्टेड लीजन आप समझ रहे हैं। अगर न्यूप्लेजिया है वहाँ पे, तो न्यूप्लेजिया जहाँ होगा उसके चारों तरफ नमूनिया हो जाता है बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द ब्रोंकस, तो वो तो अंदर आइसोडेंस हो जाता है, वो तो पता ही नहीं लगता कि इसके सेंटर के अंदर जो है ना वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है या एडेनोकार्सिनोमा। इसका मतलब है कि इस चीज़ को लास्ट में रखते हैं, नमूनिया रिजॉल्व फिर भी नहीं हो रहा, तो ये एक स्टेप है। सेकेंड है, इसको ट्राई करें, थर्ड स्टेप को करें, फोर्थ को करें और फिफ्थ को करें। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा यानी इम्पोर्टेंट है एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न। ये जो है ना कॉमन मसला है कि आपको मालूम है कि पायरोसिस की गैस्ट्रिक इरिटेशन है, लोग आते रहते हैं और आप ट्रीटमेंट देते रहते हैं, एंटासिड दे दिया और
H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे दिए, PPI दे दिए वगैरह वगैरह, लोकल एजेंट्स हैं वो दे दिए, फिर वापस आ गया मरीज, फिर आपने दे दिए, फिर आ गया वापस, फिर दे दिए। तो आपको ये चाहिए था कि स्टूल एग्जामिनेशन कराते फॉर एच पायलोरी एंटीजन। असल में यूरिया स्टेज ब्लड यूरिया टेस्ट होता है इसमें स्पेसिफिकली, वो करना बहुत मुश्किल है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है, गोल्ड स्टैंडर्ड वही एंडोस्कोपी करें, यहाँ की बायोप्सी लें एंड देन सी वेदर दी एच पायलोरी लाइक ऑर्गेनिजम्स यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं। लेकिन इतना ज़्यादा हर पेशेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकता, ना वो तैयार होता है एंडोस्कोपी के लिए। तो आप स्टूल एग्जामिनेशन करें RE विद ऑकल ब्लड विद एच पायलोरी एंटीजन। अगर एच पायलोरी एंटीजन आ गया उसमें, तो उसके अंदर जो है ना वो रिजीम जो है वो 13 से 14 रिजीम है, अलग अलग रिजीम है सर। मोस्ट इफेक्टिव रिजीम जो प्रैक्टिस किया जाता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में या सम पार्ट्स ऑफ द यूरोप में, वो ये कह रहा था टेट्राड रिजीम। इसमें क्या कहते हैं कि टैबलेट क्लोरोमाइसिन 500 मिलीग्राम BD फॉर 7 डेज देते हैं, जमा करते हैं उसको अमोक्सिसिलिन के साथ, अगर अवेलेबल है 1 ग्राम, 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम, 5 डेज देते हैं, कुछ लोग 7 डेज भी देते हैं। मेट्रोनिडाजोल 500 मिलीग्राम 8 आवरली फॉर 7 डेज देते हैं, फुल डोज। अब एक ड्रग तो ये हो गई, दूसरी हो गई, तीन ड्रग हो गई। चौथी ड्रग जो होती है वो कैप्सूल जो है ना, ओमेप्राजोल 40 मिलीग्राम दे तो ज़्यादा बेहतर है। फर्स्ट ड्रग ओमेप्राजोल, लेंजोप्राजोल, पेंटाप्राजोल। लेकिन ये ड्रग जो है ना, इसकी स्टडीज़ हैं, क्योंकि इसके साथ इसमें सेम ड्रग शुड बी यूज फॉर 2 वीक्स। ये 14 दिन तक देंगे, विड्रॉ कर देंगे, पेशेंट बेहतर हो जाएगा, 1 वीक का गैप देंगे, फिर दोबारा आप करा के देख लें स्टूल। इसमें ख्याल ये है कि शुड बी these drugs should be taken before meals, half hour or 1 hour before meal, so the absorption इसका जो है ना कंप्लीट हो जाए। पेशेंट अगर नॉजिएटेड है तो सिम्टोमेटिकली आप दे सकते हैं ड्रग्स, जो आप बेहतर समझते हैं वो दे सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ना ये जो कंडीशन है डिसेंट्री कहलाती है। डिसेंट्री का मतलब ये होता है कि किसी को कोलाइटिस हो गया है। और कोलाइटिस का मतलब ये हुआ कि टेनेस्मस हुआ है और डिफिकेशन पेनफुल है उसका, और पैसेज ऑफ म्यूकस है या पैसेज ऑफ ब्लड है, ये दोनों हैं। लेकिन आप पैसेज ऑफ म्यूकस प्लस ब्लड ऑब्लिक, उसके साथ टेनेस्मस होना बहुत जरूरी है। विदाउट टेनेस्मस, टेनेनस इन द पैराकोलिक गटर, डायग्नोसिस डिसेंट्री नहीं बनेगी। अब पाकिस्तान में जो कॉमन है, जो अमीबिक डिसेंट्री या बैसिलरी है, अमीबिक डिसेंट्री के लिए मेट्रोनिडाजोल प्लस डायलॉक्सिनेट फ्यूरिड दे दें, ताकि इंटेस्टिनल में बेसिस और हेपेटिक में बेसिस दोनों को ख़त्म करते हो। इट शुड बी गिवन फुल डोज थ्राइस अ डे फॉर 7 डेज। एंटी एमेटिक ऐड करते हैं इसके साथ, ये बर्दाश्त कर लेगा। बैसिलरी डिसेंट्री के लिए यूज सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम BD, or you can use the amoxicillin plus clavulanic acid augmentin 1 ग्राम BD फॉर 7 डेज। ये जो है बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि ये अगर एंटर हो जाए ब्लड में तो ये सेप्टिसीमिया कॉज करती है। तो इसलिए पेशेंट अमेरिका में और इंग्लैंड में बैसिलरी डिसेंट्री के एडमिट करके फिर मैनेज करते हैं। हम पाकिस्तान में इस तरह नहीं करते, उनको रेस्ट दे देते हैं और ये ड्रग्स दे देते हैं। अब इंटरिक फीवर डायग्नोज कर दिया किसी ने, फीवर हो रहा है, एस्केलेटिंग है 101.5, 102, इट में भी विदाउट ड्राइगर, इट में भी। ये बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर है, इंशाल्लाह वो हम भी आपको लेक्चर देंगे कभी इंटरिक फीवर पे। लेकिन उसके अंदर मसला ये आ रहा है कि आप ड्रग कौन सी दें। अभी तक जो है ना सेंसिटिविटी बरकरार है। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अकॉर्डिंग टू दी, मेरे सामने करंट मेडिकल पड़ी हुई है, इसमें फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस इसी ग्रुप की दूसरी ड्रग ओफ्लॉक्सासिन। मज़ेदार बात यह है कि जिसको फ़ायदा सिप्रो से नहीं होगा उसको ओफ्लॉक्सासिन से हो जाएगा। अब ये देखिए, ये प्रो ड्रग नहीं है, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। अभी मॉक्सिफ्लॉक्सासिन के बारे में स्टडीज़ कंप्लीट नहीं है। थर्ड ड्रग ऑफ चॉइस में अमोक्सिसिलिन है, अब ऑगमेंटिन दे दें इसकी जगह, वो भी इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा। फोर्थ ड्रग ऑफ चॉइस है कैप्लोस्पोरिन्स, सिप्रोक्सिम, सिप्रोक्सिमीन या सिप्रोटॉक्सिम,
फिफ्थ ड्रग ऑफ चॉइस है कोट्राइमोक्सिलसेप्टोन बच्चों में खास तौर पे, और सिक्स ड्रग ऑफ चॉइस है वो दवाएं जो भूल गए लोग, फ्यूरोजोलिडोन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फारबिल्डू, जो कि मैंने आपसे बताया कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं, रिटायर्ड पर्सन है, and he said that still cotrimoxazole and furosemide are effective agent against enteric fever in children. इन बड़ों में भी इफेक्टिव है अगर ये ड्रग्स इफेक्टिव नहीं होती। अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो गया या ड्रग रेजिस्टेंस है इसको पेशेंट को, उसके अंदर जो है ना फिर ये ड्रग्स नहीं देते हैं, उसकी जगह हम जो है ना वो एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, 1 ग्राम देते हैं ओडी 7 days to 10 days। एक पेशेंट जो है ना टॉक्सिक है वो आपके पास, तो हमेशा याद रखें उसको सेफोटॉक्सिन या सेफोरॉक्सामिन इनमें से कोई ग्रुप दे के 2 ग्राम इंटरवेनस ओडी दें 7 days तक, और फिर इसको आप ओरल कन्वर्ट कर दें सेफोरॉक्सामिन में 400 मिलीग्राम ओडी फॉर 5 to 7 days ओरल दे दें, 5 days पैरेंटल दे दें अगर वो टॉक्सिक है। ये फूड पॉइजनिंग है जो मन होती है, वायरल और केमिकल और एलर्जिक है, सपोर्टिव मेजर्स चाहिए होते हैं इसमें ज़्यादातर, डिपेंड करता है इंक्यूबेशन पीरियड पर। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल पॉइजनिंग आपको स्टेफिलोकोकल पॉइजनिंग है तो बीटा लैक्टम और मैक्रोलैट शुड बी यूज्ड। आप मेट्रोनोडाजोल दे रहे होते हैं उसको, उसमें तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर ग्राम नेगेटिव है तो फिर इससे फ़ायदा इतना नहीं होगा जितनी आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फ्लूरोक्विनोन से फ़ायदा होगा या लीवोफ्लॉक्सासिन से फ़ायदा होगा, तो वो भी इचीरिचिया कोलाई की पॉइजनिंग होती है और कॉमन पॉइजनिंग है। बहुत 6 घंटे 8 घंटे बाद शुरू हो जाती है फूड पॉइजनिंग, और उसके बाद जो है ना वो ग्राम नेगेटिव ही बैक्टीरिया ही हो सकता है। उसके बाद के बैक्टीरिया साल्मोनेला है मिसाल के तौर पर, वो भी ग्राम नेगेटिव है, उसमें भी ये इफेक्टिव है। खासतौर पैराटाइफाइड फीवर के अंदर जो है वो याद रखिए कि जस्ट फूड पॉइजनिंग की तरह प्रेजेंट करता है पेशेंट। एब्डोमिनल कंप्लेंट ज़्यादा होती हैं, फीवर से ज़्यादा प्रॉब्लम एब्डोमिनल होता है, तो उसमें भी ये ड्रग्स ऑफ चॉइस है। तो फूड पॉइजनिंग जो है उसको मैनेज करें, उसकी पैरेंटल न्यूट्रिशन दें उसको, या ओरल न्यूट्रिशन और फ्लूइड थेरेपी और सॉल्ट थेरेपी दें उसको। टैबलेट डायरिया कॉमन मसला है, नहीं इसमें काम की बात यह है कि एक आदमी बाहर से आया है और बहुत तंग है, तो उसमें जो है ना अकॉर्डिंग टू द ये रेफरेंस दिया हुआ है हैरिसन बुक में, वो कहते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त बात ये है, इसकी ब्यूटी देखें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसमें 500 मिलीग्राम ओनली 1 दिन की दवा दे दें, बस एक रात को दे दें, एक सुबह दे दें, फिर दोबारा देने की ज़रूरत है ही नहीं। ये ऑल्टरनेटिवली 1 टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन दे दें, बस वो काफ़ी है। ये 5 दिन नहीं दी जाती दवा, इसमें 1 day थेरेपी होती है, स्टेप थेरेपी होती है, बस वो जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, इचीरिचिया कोलाई थी या जो भी थी जिसने इंडक्शन किया है डायरिया को, वो ख़त्म हो जाता है। उससे फ़ायदा अगर ना हो तो फिर मेट्रोनोडाजोल दे देते हैं, सेकंडाजोल दे देते हैं ज़्यादातर, सेकंडाजोल 4 के नाम से जो आती है टैबलेट, वो जो है 2 टैबलेट इकट्ठी खिला दें, ख़त्म करेंगे उससे को। अब वो अटका हुआ होता है, मैं तो टैबलेट डायरिया का मरीज पूरे हफ्ते तक आए लोग, यकीन करें मेरे पास 2 हफ्ते तक प्रेजेंट किया लोगों ने कि 2 हफ्ते तक ये हो गया, जब फ़ायदा नहीं हुआ मैंने सिप्रोफ्लॉक्सासिन 1 गोली रात को 1 सुबह दे दी, वो गायब हो गए। तो वो जो बाहर से आए थे लोग अमेरिका से, वो कहने लगे आपने कौन सी जादुई दवा दी थी ये बता दें। मैंने कहा आप कौन सी खा रहे थे? उन्होंने कहा हम तो ये खा रहे थे, एंटामिजोल खा रहे थे, मेट्रोनोडाजोल। मैंने कहा नहीं ना, यही तो बात है। इसके अंदर जो है ना वो ग्राम नेगेटिव बेजलाइज है, वो ज़्यादातर कॉज करते हैं टैबलेट डायरिया। ये चीज़ या कोलाई ख़ास तौर पे आगे पानी पिया या कोई भी चीज़ ऐसी खाई और उसमें गया तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिकल डायरिया होता है, और फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज द एजेंट ऑफ चॉइस। यूटीआई अगर किसी को ऑर्गेनिजम्स में है ना, उसके स्टेफिलोकोकस डिप्लोमाटिस है, क्लिस्ट्रीडियम निमोनिया, मारिया ट्रैकोमाटिस है, ई कोलाई प्रोटियस है, स्यूडोमोनास, ये देखिए नाइट्राइट पॉजिटिव है, नाइट्राइट नेगेटिव है। ये देखिए आप नाइट्राइट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इचीरिचिया कोलाई है, ठीक है जी, प्रोटियस है, स्यूडोमोनास है, ये ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स हैं। बाकी ग्राम ज़्यादा नाइट्राइट नेगेटिव है, तो ऐसा कवरेज देंगे वो इन सब के अंदर जो है वो कामयाब हो जाए। तो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल हो यूटीआई के अंदर?
तो उसके अंदर जो है ना कल्चरल सेंसिटिविटी के तहत करा रहे हैं तो आप उसको दें, मतलब पहले फ्लूइकोलोनोस ट्राई करें, या फिर आप जो है ना बीटा लैक्टम्स को ट्रायल दें उसकी, या फिर टेट्रासाइक्लिन को ट्रायल दें। लेकिन अगर आप कल्चरल सेंसिटिविटी यूरिन की भेजते हैं बिफोर गिविंग एंटीबायोटिक्स, तो उसमें जो है ना देखिएगा कि जिसकी सेंसिटिविटी हो वो आप 7 to 10 डेज तक दे दें। अक्सर ऐसा होता है इचुरिचिया कोलाई जो ऑर्गेनिज्म है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिकल है फीमेल में खासतौर पर। इसमें फिर क्या करते हैं कि फॉस्फोमाइसिन्स इस्तेमाल करते हैं, और ये हम रिपीटेडली इस्तेमाल करते हैं। इसका साशे आता है 3 ग्राम का, हर हफ्ते एक साशे दें फॉर 4 वीक्स, बाद में 8 हफ्ते भी देना पड़ता है। और फिर दोबारा कल्चर करा के देखें, नेगेटिव हो जाएगा और फिर दोबारा नहीं होगा अगर आपने सही तरह मैनेज किया। अब ये देखिए कि यहाँ से जो है ना साइनस बन गया, ये पूरा इन्फ्लेम हो गया है, एक्सरे कराया तो बच्चा चला बोन में सेप्टिक आर्थराइटिस हुआ है या ऑस्टियोमाइलाइटिस से इसके साथ। इसके अंदर जो एजेंट होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, सेकेंडरी इन्वेडर्स स्ट्रेप्टोकोका, ये 2 ऑर्गेनिज्म है और दोनों ग्राम पॉजिटिव कोका है। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होनी चाहिए? एमॉक्सिसिलिन प्लस कार्बोनिक एसिड। ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म है, इनके खिलाफ एजेंट जो होते हैं। अगर नहीं है तो लिंकोमाइसिन इंट्रामस्कुलर लगा दें, ज़्यादा अच्छी बात है, पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है लिंकोमाइसिन की बोन के अंदर। थर्ड ड्रग ऑफ चॉइस जो फ्लुनोकोलिडोन्स है और फ्यूसिडिक एसिड्स हैं। आई होप कि ये कॉमन जो है ना हम जो थेरेपी देते रहते हैं लोगों को मुख्तलिफ इन्फेक्शंस के अंदर, कंडीशंस के अंदर, वो मैंने आपसे डिस्कस की। आई होप कि आप अब समझ में आई होगी आपके बात कि कौन सा इन्फेक्शन है तो क्या देना चाहिए, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव वगैरह वगैरह, और कितने ड्यूरेशन में देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप जो है आइंदा रैशनल इस्तेमाल करें, एंटीबायोटिक को तुक्का मार के इस्तेमाल ना करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।